ठीक है. Now today we'll revise the topic, the most important topic, and that is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Everyone, listen. Actually, this law is all about gravitation. Newton's find है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज नेम्ड एज ग्रेविटेशन. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स एक्ट करेगा? द मेन कॉज इज दैट मास. मास इज द मेन कॉज. अभी स्टेटमेंट तो हम लोग पढ़ लेंगे, यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम. हमारे यूनिवर्स में जितने भी मास है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? मास. सो न्यूटन सेड दैट कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है. नाउ ही कैलकुलेटेड दैट फोर्स. एक्चुअली लॉज के कोई डेरिवेशन नहीं होते, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके ऊपर कई बार, एंड उसके बाद हम लोग एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं. न्यूटन ने भी इसके ऊपर यानी कई बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोशिश की, सोचा. देन ही सेड दैट कि अर्थ एंड सन, इसकी एग्जांपल ली. अर्थ एंड सन, अर्थ इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द सन. व्हाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन? व्हाट इज द कॉज? व्हाट इज द रीजन? देन ही फाउंड दैट सन एंड अर्थ बोथ हैज mass, okay, and due to that mass both are applying a force on each other. The thing is that किसका फोर्स ज्यादा होगा? अर्थ भी फोर्स अप्लाई कर रही है सन पर, एंड सन भी क्या कर रहा है? अर्थ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. देन ही सेड दैट जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा. ही सेड दैट कंसीडर सन, ओके, द मास ऑफ द सन इज व्हाट? कैपिटल M. सपोज ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, चेंज द एग्जांपल. वी कैन टेक एनी टू ऑब्जेक्ट्स, यू एंड मी, ओके, आई एंड दिस टेबल, एनीथिंग विच हैज व्हाट? मास. सो सपोज आई एम हियर, मास, my mass is what? Capital M. There is another object like this boy, okay, whose mass is what? Small m. What? And there is a distance, say it is what? D. You can write it R or whatever it may be, almost 2 or 3 meter distance, right? Approximately 3 meter. So here this D is what? 3 meter. Depends upon the distance. अगर मैं एंड लास्ट गर्ल के बीच का डिस्टेंस हम लोग अगर काउंट करेंगे, so the value of D could be 10 or 12 meter. So we will simply say D is the distance between the two objects. He formulated a formula that the force between these two objects is directly proportional to product of their masses. Product of their masses, that is capital M into small. Now, first try to understand what is the meaning of directly proportional and indirectly proportional. Suppose here A is directly proportional to B. One. What does it mean? The meaning of directly proportional to is that दोनों में से कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. सपोज B is increasing, then automatically A is also what? Increasing. If B is decreasing, then A will also what? Decrease. So directly proportional में कोई भी चेंज होगा एक क्वांटिटी में तो दूसरी क्वांटिटी में भी क्या होगा? सेम चेंज होगा. करेक्ट? This is the meaning of directly proportional. There is another. If I write like this is called indirectly proportional or inversely proportional. What will be the meaning of this inversely proportional? Just reverse of this. If B will increase, then A will decrease. बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है. And if B will decrease, then A will increase. This is the meaning of directly proportional and inversely proportional. Here, what actually Newton said, जो उन्होंने कहा वही हमारा स्टेटमेंट बनेगा, and you have to write that statement in your examination. He said that the force between the two objects is directly proportional to the product of their
mass 6. One thing. Second, this force does not only depend upon the mass, it also depends on certain other things. The second thing, this force is inversely proportional to square of the distance. Remember, this force is not only depend upon the distance, inversely depend upon the distance, and not on the distance, square of the distance. What? Square of the distance. So what will be the meaning of directly proportional? अगर मैं मास इंक्रीज करते जाऊंगा, what about the force? Force will also increase. Okay? हमारी यूनिवर्स में या हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं, सबसे ज्यादा मास किसका है? अर्थ का. दैट्स वाई सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसके पास है? अर्थ के पास. दैट्स वाई अर्थ ने सबको अपनी तरफ क्या करके रखा हुआ है? बाइंड करके रखा. इवन आप और मेरे बीच में, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके बीच में, मेरे बीच में, इवन मेरे और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. भाई मेरे पास भी मास है और उनके पास भी मास है. सो जिसके पास भी मास होता है उसके बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट? वो दिल्ली में और मैं कामठी में हूं, तो डिस्टेंस कैसा है? बहुत ज्यादा है ना. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही क्या होगा? कम होगा. बट आपके और मेरे बीच में, एंड मेरे और उस लड़की के बीच में, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. बिकॉज हम दोनों, उनके पास, आपके पास, मेरे पास, सबके पास क्या है? मास है. बट राइट नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में ज्यादा होगा, किसके बीच में कम होगा? सर आपके, मेरे और आपके बीच में ज्यादा होगा, मेरे और आपके बीच में कम होगा. क्यों? इसके कंपैरिजन में सर डिस्टेंस. सो हियर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना. डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा. लाइक दिस. ठीक है. वन थिंग. नाउ उन्होंने इन दोनों फॉर्मूले को क्या कर दिया? एक साथ रख दिया. सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? या पहले प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं. वेट m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. नाउ फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वल लिखते हैं और साथ में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. सो दिस प्रोपोर्शनलिटी इसको हटा देंगे और यहां क्या लिखेंगे? इक्वल. एंड देयर इज अगेन अ कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G, then capital M, small m upon d square. This is what the formula of Newton's law of gravitation, where this capital G is universal gravitational constant. Not only a gravitational constant, it is what? Universal gravitational constant. Because आप अर्थ पर हो, मार्स पर हो, मून पर हो, कहीं पर हो, कैपिटल G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट अबाउट स्मॉल g? हाँ, स्मॉल g is termed as acceleration due to gravity. Its value is maximum on the surface of the earth. ठीक है. बट अगर आप मून पर चले जाते हो, what will happen? The value, distance increasing, force will decrease. Okay. So we have a calculation. We will revise it again. No problem. But first, okay. This capital G has a fixed value. Can anyone tell me the value? 6.7 into 10. Sir, 6.67 into 10 की power minus 11. The value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. There is a scientist named as Cavendish who actually gives the value of capital G. Now, what will be the unit of capital G? Now, first tell me the unit of force. Sir, Newton. That is what? Newton. The SI unit of force is Newton. What about CGS? CGS system, जैसे SI system होता है, CGS system भी होता है. हाँ, very good. Dyne नहीं, it's dyne. Okay. So SI unit is what? Newton, and CGS unit is what? Dyne. What will be the unit of capital G? Sir, nm square K. If you don't know the unit, you can find out the unit from this formula. Now, suppose we have a G. Okay, we will calculate the value of G. Just cross multiply. What will happen? F into D square and capital M small m. इसको भी cross multiply करके इस तरफ नीचे लेकर आ जाओ. G will be alone M into F.
From this formula you can find the unit. Tell me, unit of force? Newton. D is what? Distance. Distance is always calculated in meter. So meter, but here distance is square. Meter is square. Here mass kg. Into this mass will again kg. That's why it will become what? Kg square. So Newton meter square per kg square is the unit of G. That is universal gravitational constant. So here we will write Newton meter square per kg square. So this is all about what? Newton's law of gravitation. Now, there are some important characteristics of this law. Remember one thing, just wait. Okay. There are few important characteristics which are related to Newton's law of gravitation. Number one, Newton's law of gravitation is always attractive force. It is always what? Attractive force. Because forces could be of two types, no? Attractive as well as repulsive. Like charges, positive, negative will what? Repel. And positive, negative will attract. But gravitational force has only one nature. It is always attractive. One. Second, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं. सपोज मेरा कुछ मास है, कैपिटल है, एंड आपका नाम क्या है? दिव्यम. दिव्यम का मास सपोज स्मॉल है. हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. यस और नो? यस सर. करेक्ट. एंड अभी मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बताई? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट हम दोनों को अट्रैक्टिव होना था और हमारी बॉडीज को चिपक जाना था. बिकॉज इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स ना. दैट्स वाई हम दोनों को क्या होना था? ऐसा होता है क्या? आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिपक सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको. ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? एज पर द लॉ, टू मासेस विल अप्लाई अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. सो एज पर दैट ईच एंड एवरी टू ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है किसी ना किसी से वो चिपका हुआ होता है. एज पर दैट कैरेक्टरिस्टिक. बट you will find the solution in the second characteristic. It is attractive force, that is right, but gravitational force is the weakest force in this universe. Gravitational force सबसे weakest force होती है. लॉन्ग रेंज है. इवन मेरे और यूएस के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो बाइडेन, हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. बिकॉज इंडिया एंड यूएसए के बीच में देयर आर लॉट्स ऑफ ओशियंस. ओशियंस आर व्हाट? वाटर. वाटर हैज व्हाट? मासेस. तो हमारे बीच में भी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस कम भी होगा. इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर. दैट्स वाई कोई भी दो बॉडीज अट्रैक्ट नहीं कर पाती हम में से, बट अर्थ हमको अट्रैक्ट कर लेती है. रीजन? वेरी गुड. बिकॉज अर्थ का मास जितना ज्यादा होगा, बिकॉज हियर इन द फर्स्ट वन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. बॉडीज का मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ये लॉ, इसका स्टेटमेंट एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन फ्यूचर में साइंस अगर आप लेते हैं, फिजिक्स स्पेशली आप पिक करोगे, तो 11th में नीट, जेई, ये जितने भी एडवांस एग्जामिनेशन होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह पर रहता ही रहता है. और ये तो अभी 9th के सिलेबस के हिसाब से हमारी बुक में दिए, यानी गिवन है. इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो हियर आई विल स्टॉप. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय.